حالیہ مونسون بارشوں کا سلسلہ 23 اگست تک جاری رہے گا۔ گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں غیر معمولی بارشیں ہوئیں۔ مختلف علاقوں میں سیلابی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ پاک فوج کے انجینئرز، ڈاکٹرز اور دیگر جوان سیلاب زدگان کی امداد کر رہے ہیں۔ بنیر میں پاک فوج نے کامیاب ریسکیو آپریشن کیا۔ بنیر، شانگلہ سمیت متاثرہ علاقوں میں خوراک، ادویات اور کمبل پر مشتمل امداد پہنچائی جا رہی ہے۔ پنجاب کے مختلف شہروں راولپنڈی، لاہور، فیصل آباد میں بارشوں سے سیلابی صورتحال ہو سکتی ہے۔ NDM میں حکام کی حالیہ بارشوں اور سیلاب سے ہونے والی تباہی پر بریفنگ۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف بالائی علاقوں میں بارشوں سے پیدا سیلابی صورتحال کے بعد جاری ریسکیو اور ریلیف آپریشن کی خود نگرانی کر رہے ہیں۔ متاثرہ اضلاع میں امدادی سامان کی ترسیل، لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچانے اور لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن مؤثر بنانے کے لیے چیئرمین NDMA سے مسلسل رابطہ۔ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے NDMA کو مکمل تیار رہنے کی ہدایت۔ متاثرہ علاقوں میں بند راستوں کو فوری بحال کرنے کا حکم۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار سے برطانیہ کے وزیر خارجہ کا رابطہ۔ سیلاب سے ہونے والے قیمتی جانی نقصان پر اظہار افسوس۔ مشکل کی گھڑی میں حکومت پاکستان اور عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ ڈیوڈ لیمی کا دورہ لندن میں کامیاب ملاقاتوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ نائب وزیر اعظم کا اظہار یکجہتی اور امداد کی پیشکش پر برطانوی وزیر خارجہ سے اظہار تشکر۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں طوفانی بارشیں، بادل پھٹنے، لینڈ سلائیڈنگ اور سیلابی ریلوں سے بڑے پیمانے پر تباہی۔ 340 سے زائد افراد جاں بحق، سینکڑوں لاپتہ۔ سیلابی ریلوں میں 20 گھر، جانور، گاڑیاں اور قیمتی گھریلو سامان تنکوں کی طرح بہہ گئے۔ متاثرہ علاقوں میں ہنگامی حالت نافذ، بپھرے ریلوں سے درجنوں رابطہ پل بھی تباہ۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری کا اظہار افسوس، متاثرہ خاندانوں سے اظہار ہمدردی۔ خیبر پختونخوا میں کلاؤڈ برسٹ کے بعد سیلاب۔ سوات میں بپھرا دریا، راستے میں آنے والی ہر چیز کو تنکوں کی طرح بہا لے گیا۔ بنیر میں سب سے زیادہ 213 افراد جان سے گئے، متعدد افراد لاپتہ۔ مانسہرہ میں تودے گرنے سے 20 افراد جاں بحق۔ باجوڑ میں کلاؤڈ برسٹ کے بعد لینڈ سلائیڈنگ سے 21 اموات ہوئیں۔ باجوڑ اور دیر کو ملانے والا انتہائی اہم پل بھی سیلاب کی نظر۔ سیلاب سے تورغر، شانگلہ اور بٹگرام بھی شدید متاثر۔ متاثرہ اضلاع کے لیے 50 کروڑ روپے جاری۔ گلگت بلتستان میں سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کے باعث شاہراہیں شدید متاثر۔ گانچے میں سورمورا، سلتر اور پل، جبکہ شاہراہ بلتستان پر باغیچہ پل اور ستک پل کو شدید نقصان پہنچا۔ غزر میں دیان، تھلی بروک، خلطی کے لیے راستے بند۔ گلگت سے ہنزا نگر اور نلتر کے لیے بھی رابطہ منقطع۔ بارش اور لینڈ سلائیڈنگ سے شاہراہ بابوسر اور شاہراہ قراقرم کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ گلگت بلتستان میں سیلاب سے 35 افراد جاں بحق، 35 زخمی ہو چکے۔ عوام کو بارش کے دوران احتیاط کرنے کی ہدایت۔ آزاد کشمیر میں سیلابی ریلوں سے درجنوں رابطہ پل تباہ۔ مختلف حادثات میں 13 افراد جاں بحق۔ مظفر آباد میں کلاؤڈ برسٹ سے ایک ہی خاندان کے 6 افراد سمیت 8 جاں بحق۔ وادی نیلم کے جاگرا نالے میں شدید طغیانی۔ کنڈل شاہی آبشار پر بنا پل بھی بہہ گیا۔ بنیر، شانگلہ، سوات اور آدم خیل میں پاک فوج اور فرنٹیئر کورps نارتھ کا ریسکیو آپریشن جاری۔ مزید دستوں اور انجینئرز کورps نے کام کا آغاز کر دیا۔ خراب موسم کے باوجود ہیلی کاپٹر ریسکیو مشن پر جاری۔ متاثرہ افراد کا مفت طبی معائنہ اور ادویات کی فراہمی۔ پاک فوج کا ایک دن کا راشن بھی ضرورت مند افراد تک پہنچایا جا رہا ہے۔ متاثرہ افراد کا پاک فوج کی کوششوں پر اظہار اطمینان۔ بنیر سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں پاک فوج کی امدادی کارروائیاں۔ متاثرہ افراد کا پاک فوج کی جاری امدادی سرگرمیوں پر اظہار تشکر۔ پاک فوج نے ہماری مدد کی، امدادی کیمپ لگائے، ہم پاک فوج کے بروقت آمد پر بہت خوش ہیں۔ متاثرہ افراد کے تاثرات۔ پاک فوج سیلاب زدگان کی بحالی تک امدادی کارروائیاں جاری رکھنے کے لیے پرعزم۔
जुड़वा शहरों में सुबह से जारी मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। इस्लामाबाद के नवाही इलाके न्यू छठा बख्तावर के बरसाती नाले में ऊंचे दर्जे का सैलाब। करीबी रिहायशी इलाकों में हाई अलर्ट जारी। बाज़ नशेबी इलाकों में पानी दाखिल। नाला लई में पानी की सतह में बतदरीज इजाफा। कटारियां और गवाल मंडी के मकाम पर पेश की इंतबा जारी। आज से पंजाब के बेशतर अजला में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। तर्जमान PTMA के मुताबिक 7वां सिलसिला 23 अगस्त तक जारी रहेगा। बालाई इलाकों में बारिशों के बायस दरियाओं के बहाव में गैर मामूली इजाफे का खदशा। पंजाब के दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी का अलर्ट जारी। तेज बारिश और आंधी से मखदूश और कच्चे मकानात को नुकसान पहुंचने का अंदेशा। शहरियों को मौसम बरसात में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर NTMA की पहाड़ी इलाकों में सयाहत महदूद करने की एडवाइजरी जारी। बारिशों के दौरान खतरनाक इलाकों में अवामी आमदोरफ्त महदूद की जाए। हालात के पेश नज़र दफ़ा 144 के तहत सयाहती पाबंदियां नाफिज की जा सकती हैं। अवाम मुतासरा इलाकों का सफ़र करने से गुरेज करें। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। मोदी सरकार को एक और धचका। अमेरिका ने भारत के साथ अगस्त में होने वाले तिजारती मुज़ाकरात मंसूख कर दिए। अमेरिकी तिजारती वफ़द ने 25 से 29 अगस्त का तयशुदा भारत का दौरा मंसूख कर दिया। भारतीय मीडिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप रूस और यूक्रेन के सदूर को एक मेज पर बिठाने के लिए सरगर्म। व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के बाद अपने यूक्रेनी हम मनसब से भी टेलीफोनिक राबता। रूसी सदर से मुलाकात के अहम निकात से आगाह किया। व्लादिमीर पुतिन मुकम्मल अमन मुआहदा चाहते हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप। यूक्रेनी सदर कल वाशिंगटन में सदर डोनाल्ड ट्रंप से अहम मुलाकात करेंगे। गजा पर काबिज सेहूनी फौज के वहशियाना हमले। खुराक के मुंतजिर 16 अफराद समेत मजीद 40 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। भूख से मजीद 11 अफराद जाँ भग। फ्रांस के मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारी के नए इसराइली मनसूबे की मसम्मत। डेनमार्क ने गजा में इंसानी अलमिया को इंतहाई हौलनाक और तबाहकुन करार दे दिया। इसराइल पर पाबंदियां आयद की जा सकती हैं। वज़ीर आज़म मेटे फ्रेडरिक्सन। सेमुल की T20 सीरीज और एशिया कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। सेलेक्टर आकिब जावेद और हेड कोच माइक हिडसन ने खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया। सेमुल की T20 सीरीज 29 अगस्त से मुत्तहिदा अरब अमारात में खेली जाएगी। इवेंट में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात की टीमें शिरकत करेंगी। भारत की मेजबानी में T20 एशिया कप सितंबर में दुबई में खेला जाएगा। चेंगडू में वर्ल्ड गेम्स मेडल्स का सिलसिला जारी। मेंस और विमेंस कैनो पोलो के तलाई तमगे जर्मनी के नाम रहे। बेरबो तीरंदाजी में फ्रांस और इटली ने गोल्ड मेडल जीते। रोलर स्पोर्ट्स स्पीड स्लैलम में ताइवान की लियो शाओ और चीन की येंग हाओ ने सोने का तमगा हासिल किया। फ्लाइंग डिस्क मिक्स इवेंट में अमेरिका ने कनाडा को शिकस्त दी। जिम्नास्टिक में मेजबान चीन और जापान के तलाई तमगे। अमरीकी रियासत ओहायो में ATP 1000 सिंसिनाटी ओपन टेनिस फाइनल दिफाई चैंपियन इटली के जानिक सिनर और स्पेन के कार्लोस अल्काराज के दरमियान खेला जाएगा। सेमीफाइनल में टॉप सीड सिनर ने क्वालिफाई फ्रांस के टारस अफमाने को शिकस्त दे दी। अल्काराज ने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव को जेद किया। WTA मास्टर्स 1000 सिंसिनाटी ओपन। इटली की जैस्मिन पॉलिनी ने अमेरिका की कोको गाफ को शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। रूस के एकतरमितोवा ने फ्रांसीसी हरीफ वरवारा ग्रेचोवा को हराकर पहली मर्तबा सिंसिनाटी ओपन के लास्ट 4 में जगह बनाई। जर्मनी में पहली जर्मन कश्ती रानी ग्रां प्री का आगाज। 2 रोजा रेस में 12 ममालिक से कश्ती रानी की बेहतरीन टीमें शरीक। पहले रोज ऑस्ट्रेलिया की बॉन्ड्स फ्लाइंग रूस को बरतरी हासिल। न्यूजीलैंड के मल्ला 8 पॉइंट्स के फर्क से दूसरे नंबर पर। ओशियन रेस यूरोप की पोर्ट्समाउथ से स्पेन में कार्टाजीना तक 1400 नॉटिकल माइल्स पर मुश्तमिल दूसरी लीग का आज से आगाज हो रहा है।
ریس کا جرمنی سے پورٹس ماؤتھ تک کا پہلا مرحلہ فرانس کے بایوتھم نے اپنے نام کیا۔ جرمنی کی ٹیم ملیزیا دوسرے نمبر پر رہی۔ سوئس ٹیم ہالیسم اور اٹلی کی ٹیم آلا گرانڈے ماپے پہلے مرحلے سے دستبردار ہوئی تھی۔ ریس کل سے شروع ہوگی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خبر نامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں ہما ملک۔ کھیلوں کی خبروں میں ہوں آپ کے ساتھ محمد انیس، اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ اور سب سے پہلے آپ کو موسم کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ این ڈی ایم اے حکام نے حالیہ بارشوں اور سیلاب سے ہونے والی تباہی پر بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ مانسون بارشوں کا یہ سلسلہ 23 اگست تک جاری رہے گا۔ گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں غیر معمولی بارشیں ہوئیں۔ مختلف علاقوں میں سیلابی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ پاک فوج کے انجینئرز، ڈاکٹرز اور دیگر جوان سیلاب زدگان کی امداد کر رہے ہیں۔ بنیر میں پاک فوج نے کامیاب ریسکیو آپریشن کیا۔ بنیر، شانگلہ سمیت متاثرہ علاقوں میں خوراک، ادویات اور کمبل پر مشتمل امداد پہنچائی جا رہی ہے۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں درمیانی درجے کی بارشیں متوقع ہیں۔ راولپنڈی، لاہور، فیصل آباد میں بارشوں سے سیلابی صورتحال ہو سکتی ہے۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں طوفانی بارشوں، بادل پھٹنے، لینڈ سلائیڈنگ اور سیلابی ریلوں نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی۔ مختلف حادثات میں 340 سے زیادہ افراد جاں بحق ہو گئے۔ بنیر میں قدرتی آفت سے 213 سے زائد زندگیاں اپنی بازی ہار گئیں، جبکہ کئی افراد لاپتہ ہو گئے۔ مانسیرا میں بھی سیلابی ریلے اور تودے گرنے کے واقعات میں 20 افراد جاں بحق ہوئے۔ اس کے علاوہ باجوڑ میں طوفانی بارش کے بعد سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے 21 افراد جان سے گئے۔ کلاؤڈ برسٹ کے بعد سیلاب کئی گاؤں بھی بہا کر لے گیا۔ مکینوں کے آشیانے گر گئے۔ سیلابی ریلوں میں جانور اور گاڑیاں بھی بہہ گئیں، جبکہ بنیر میں ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی ہے۔ سوات میں بپھرا دریا راستے میں آنے والے ہر چیز کو تنکوں کی طرح بہا لے گیا۔ مینگورا سے گزرنے والی ندی کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ پانی کے ریلے رابطہ پلوں تک پہنچ گئے۔ آزاد کشمیر میں سیلابی ریلوں سے درجنوں رابطہ پل تباہ ہو گئے۔ مختلف حادثات میں 13 افراد جاں بحق ہوئے۔ مظفر آباد میں کلاؤڈ برسٹ سے ایک ہی خاندان کے 6 افراد سمیت 8 جاں بحق ہو گئے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی ہدایت پر این ڈی ایم اے نے مانسون کی شدت کے باعث پہاڑی علاقوں میں سیاحت محدود کرنے کی ایڈوائزری جاری کر دی ہے۔ مانسون سپیلز کے دوران خطرناک علاقوں میں عوامی آمد و رفت محدود کی جائے۔ ضرورت پڑنے پر دفعہ 144 کے تحت سیاحتی پابندیاں نافذ کی جا سکتی ہیں۔ عوام سے گزارش ہے کہ متاثرہ علاقوں کا سفر کرنے سے گریز کریں۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے ہدایت کی ہے کہ خیبر پختونخوا میں سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں امدادی سامان کی ترسیل اور لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے، لاپتہ افراد کے لیے سرچ آپریشن کو تیز اور مؤثر بنایا جائے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف ملک کے بالائی علاقوں میں شدید بارشوں اور سیلابی صورتحال کے حوالے سے ریسکیو اور ریلیف آپریشن کی خود نگرانی کر رہے ہیں۔ وزیراعظم کی ہدایت پر وفاقی وزیر کشمیر اور گلگت بلتستان امیر مقام نے پورا دن خیبر پختونخوا میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور امدادی سامان کی ترسیل کی نگرانی کی۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے ہدایت کی کہ سیلاب متاثرین کو خیمے، ادویات، فوری طبی امداد اور تمام متعلقہ سہولیات ترجیحی بنیادوں پر فراہم کی جائیں۔ وزیراعظم نے متاثرہ اور ملحقہ علاقوں کے مکینوں کو موسم کی پیش کی اطلاع پہنچانے اور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے این ڈی ایم اے کو ہدایات جاری کی۔ وزیراعظم نے این ڈی ایم اے کو صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے اداروں سے رابطے مزید مربوط کرنے اور ان کی ہر قسم کی معاونت کرنے کی بھی ہدایت کی۔ انہوں نے بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ کے باعث بند راستوں کو فوری بحال کرنے کے لیے کارروائی تیز کرنے سمیت شاہراہوں پر پھنسے مسافروں کو جلد از جلد مدد پہنچانے کی بھی ہدایت کی۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے صدر آصف علی زرداری کے نام تعزیتی خط میں خیبر پختونخوا میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ روس کے صدر نے پاکستان میں سیلاب سے جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا۔ ولادیمیر پوٹن نے جاں بحق افراد کے لواحقین سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد صحتیابی اور متاثرہ خاندانوں کے لیے نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا۔
और बरतानिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बराए खारजा दौलत मुश्तरका और तरक्की उमूर डेविड लेमी ने पाकिस्तान में हालिया तूफानी बारिशों और सैलाब के बायस कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसाक डार से टेलीफोनिक राब्ते में डेविड लेमी ने बरतानिया की जानिब से पाकिस्तान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया और कहा कि बरतानिया मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानी अवाम के साथ है। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसाक डार ने बरतानिया की यकजहती और इमदाद और बहाली की काविशों में ताउन की पेशकश पर इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि पाकिस्तान बरतानिया की क़यादत के साथ करीबी रवाबित को मज़ीद मुस्तहकम बनाने का ख़्वाह है। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसाक डार को कुवैत के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला अल जाहिया ने टेलीफोन किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक कुवैत के वज़ीर ख़ारजा ने सैलाब से होने वाले कीमती जानों के ज़िया और नुकसानात पर इज़हार अफसोस किया। कुवैत के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसाक डार ने यकजहती का इज़हार करने पर कुवैत के वज़ीर ख़ारजा का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने रवा महीने OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल इजलास में मुलाकात की उम्मीद का इज़हार किया। बकिया खबरें इस ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 15 से 21 अगस्त के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तेज हवाओं, गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और बाज़ मकामात पर क्लाउड बर्स्ट का इम्कान है। इस दौरान बरसाती नालों में तुग़यानी, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। एहतियाती तदाबीर, मौसम की पेशन गोई और वार्निंग्स पर नजर रखें। गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। बिजली के खंभों और बिल बोर्ड्स के करीब ना जाएं। पानी से भरे रास्ते और नालों को अबूर करने की कोशिश ना करें। नशेबी इलाकों के मकीन हुक्काम की हिदायत पर फौरी अमल करें और एमरजेंसी की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। किसी भी हंगामी सूरत हाल में NDMA और PDMA के नंबर्स पर राब्ता करें। मुहतात रहें, महफूज रहें। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब की तबाही से मुतासरा आवाम की मदद के लिए पाक फौज अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। बुनेर में सैलाब की तबाही से मुतासरा अफराद का पाक फौज की जारी रिलीफ सरगर्मियों पर इजहार तशक्कुर। सैलाब ज़दगान का कहना है कि सैलाब में जो लोग मुतासर हुए उनकी मदद में पाक फौज ने अहम किरदार अदा किया है। मुतासरा अफराद का कहना है कि यहाँ इमदादी कैंप लगाए गए हैं और जवानों ने हमें बहुत अच्छे अंदाज में मदद फराहम की है। पाक फौज हर जगह पर हमारी मदद के लिए तैयार खड़ी है। सैलाब ज़दगान की बहाली तक पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। बुनेर, शांगला और सवात के मुख्तलिफ इलाकों में पाक फौज और फ्रंटियर कोर्ट नॉर्थ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पाक फौज के मजीद दस्तों ने कल रात से सैलाब ज़दगार इलाकों में पहुंचकर काम संभाल लिया है। कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्तों ने भी साजो सामान समेत काम का आगाज़ कर दिया। मौसम की खराबी के बावजूद पाक फौज के हेलीकॉप्टर रेस्क्यू मिशन में मसरूफ़ हैं। आर्मी चीफ की हिदायत के मुताबिक पाक फौज का एक दिन का राशन भी ज़रूरतमंद अफराद तक पहुँचाया जा रहा है। पाक फौज के डॉक्टर्स ने मुतासर इलाकों में मेडिकल कैंप लगाए जहाँ पर मुफ्त अद्वियात तकसीम की जा रही हैं। बोनेर के गांव चौराक में पाक फौज के दस्ते रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। आदम खेल में तबाहशुदा मकानात के मलबे तले दबे अफराद की बहाली का सिलसिला भी जारी है। तमाम मुतासर अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू करने और महफूज मकामात पर मुंतकिल करने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। पाक फौज की जानिब से मुतासरा ख़ानदानों को ज़रूरी अशिया की फराहमी भी की गई, जिनमें राशन और बिस्तर शामिल हैं। पाक फौज की जानिब से मुतासरा अफराद के लिए हर मुमकिन इक़दामात हो रहे हैं। अवाम ने तमाम कोशिशों पर इत्मीनान का इज़हार करते हुए पाक फौज का शुक्रिया अदा किया है। मॉनसून बारिशों से खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसानात हुए हैं। गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान बारिशों से होने वाले मुख्तलिफ हादसात में 345 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तफसील के लिए सईद वजीर की रिपोर्ट देखिए।
साल 2000 के बाद ग्लेशियर्स का पिघलना, बादलों का पटना, जंगलों में आग लगना, झीलों पहाड़ों का अपनी जगह से सरकना मामूल बन चुका है। हालिया मानसून का 7वां स्पेल मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के लिए तबाहकुन साबित हो रहा है। सिर्फ 2 रोज में तूफानी बारिशों, लैंड स्लाइडिंग, सैलाब और दीगर वाकयात में 345 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। हालिया बारिशों से खैबर पख्तूनख्वा का इलाका बोनेर सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है, जहाँ 204 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। 26 जून से अब तक मुल्क भर में 645 अफराद जान बहक, जबकि 904 अफराद जख्मी हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मखसूस इलाके इस वक्त क़यामत सुगरा का मंजर पेश कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से हैं। बैनुल अक़वामी ताकतों और इदारों को पाकिस्तान को माली वसाइल फराहम करने चाहिए ताकि पाकिस्तान इन आफात का मज़ीद तक़वियत के साथ मुकाबला कर सके। इनफरादी तौर पर हमें चाहिए कि हम ऐसी जगहों पे जो कि कुदरती पानी का या पानी के बहने का कुदरती रास्ता है उस पर हम घर ना बनाएं। गवर्नमेंट के लेवल पे ज़रूरी है कि गवर्नमेंट अर्ली वार्निंग सिस्टम और ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करे जिसकी वजह से जो मकामी आबादी है उनको पता लगे पहले से कि कौन से खतरात से वो दो चार हैं। माहिरीन माहौलियात का कहना है कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से सबसे ज्यादा बच्चे और खवातीन मुतासिर हो रही हैं। इन आफात से हमेशा सबसे ज़्यादा जो लोग मुतासिर होते हैं उसमें ख़वातीन और बच्चे या बूढ़े मैं कह सकती हूँ ये होते हैं। एक तो ये है कि हमने डिज़ास्टर पे या आफात से निपटने के लिए न किसी स्कूल में, न किसी मदरसे में, न किसी निसाब में इन बच्चों को कुछ सिखाया। हमें चाहिए कि हम निसाब में इस चीज़ को भी शामिल करें। आफतज़दा इलाकों में रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जारी है और हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। कौमी यकजहती मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ हमारी ताकत है। मौसमियाती तब्दीली एक ऐसी हकीकत है जो सरहदों को नहीं मानती और इसका मुकाबला करने के लिए हम सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा। सईद वजीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। ज़िला गिज़र में मौसमियाती तब्दीलियों के बायस आने वाले शदीद सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। फसलें, माल मवेशी और बागात मुतासिर हुए, जबकि इमदादी इदारे और पाक फौज रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ़ अमल हैं। आइए देखते हैं गिज़र से नुमाइंदा PTV न्यूज़ हिदायत शाह की रिपोर्ट। ज़िला गिज़र की तारीख में पहली मरतबा मौसमियाती तब्दीलियों के बायस आने वाले शदीद सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। गुज़श्ता रोज दामास, हाइम और हातून के इलाकों में सैलाबी रेलू ने खड़ी फसलों, माल मवेशी और बागात को शदीद नुकसान पहुँचाया। महकमा डिजास्टर मैनेजमेंट, रेस्क्यू 1122, पुलिस, पाक आर्मी और मुकामी रजाकार मुसलसल इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ है, जबकि गिलगित चतरा रोड को खोलने के लिए NHA की भारी मशीनरी काम कर रही है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वाहिद शाह ने मुतासरा इलाकों का दौरा किया और मुतासरीन को हर मुमकिन ताउन और इमदाद की यकीन दहानी कराई। हमारे जो रोड्स हैं, पीने का पानी है, बिजली है, ये बुनियादी 3 चीज़ें हैं जिनको हम फौरी तौर पर मैं जिस मैंडेट को लेकर आया वो ये है कि बहाली की जाए उनकी। दूसरी जानिब पाक फौज ने हेलीकॉप्टर के जरिए खलती और दाइन के मुतासरा इलाकों में अद्वियात और एशियाई खुर्दनोश पहुँचाना शुरू कर दिया है। हिदायत शाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, ज़िला गिज़र। नाज़रीन, बल्तिस्तान डिवीज़न के 4 अजला स्कर्दू, गांछे, शिगर, खरमंग और एडिशनल ज़िला रोंदो में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। बिलखुसूस बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस तरह नुकसान पहुँचा है और बहाली के काम की जो सूरत हाल है उसकी तफसीलात जानने के लिए स्कर्दू में हमारे मौजूद नुमाइंदे कासिम नसीम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ पर मरकज़ी कंट्रोल रूम की। जी कासिम नसीम, तफसील से आगाह कीजिएगा। बल्तिस्तान के सेक्रेटरी बरक़ियात जनाब सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि जहाँ जहाँ सैलाब से डैमेजेस हैं बिजली के हवाले से, उनके रेस्टोरेशन के लिए क्या काम हो रहा है। क्योंकि कुदरती आफत है, डिज़ास्टर है और अनफॉर्चुनेटली अगस्त के महीने में पिछले चंद सालों से हमारे यहाँ एक वर्स्ट केस सिनेरियो होता है और गिलगित बल्तिस्तान में लार्जली चूँकि बिजली हाइड्रो पावर की है और हाइड्रो पावर के मेनली हमारे पास नालों पे और स्ट्रीम्स पे सारा स्ट्रक्चर बना हुआ है। जब फ्लड आता है तो अल्टीमेटली वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आपका इरिटेट होता है। इस स्कर्दू में हम कल से पहर तक जो 7 पारे की मेन बिजली है उसको रिस्टोर करने की कोशिश कर लेंगे और कल से पहर में या शाम में स्कर्दू शहर के अंदर इंशाल्लाह बिजली आ जाएगी। उस पे खरमंग में लार्जली बिजली रिस्टोर्ड है। शिगर में हम थोड़े से इरिटेट हुए हैं ट्रांसमिशन सिस्टम्स के तहत, उसको भी रिस्टोर करने की एफर्ट जारी है, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। गांचे में अलबत्ता दरिया जब तक उतरेगा नहीं और जो हमारा मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है
اس کو رسپونڈ نہیں کر پائیں گے, اس کو اسس نہیں کر پائیں گے, تو گانچے کے اندر جو ریکوری ہے یا ریہیب ہے اس ایکٹیویٹی میں تھوڑا سا وقت لگے گا. اور ایڈمنسٹریشن اور ہماری ساری ٹیم مل کے یہ ایفرٹ کر رہی ہے کہ عوام تک بر وقت اطلاع بھی پہنچ جائے, سچویشن میں ریمیڈیل میئرز کیا ہیں, رسپانس کب تک ہو سکتا ہے اور ریہیب ایکٹیویٹی کب تک ہو سکتی ہے, اس میں کمیونیکیشن میں کوئی گیپ نہ ہو. اور باقی جتنے مقدور وسائل ہیں وہ پروونشل گورنمنٹ نے پرووائڈ کیے ہوئے ہیں. ایمرجنسیز جتنی انووک ہونی ہے وہ ایڈمنسٹریشن کے اس ہمارے مختلف ٹیئرز کے ذریعے وہ بھی ہو رہی ہیں. اور ناظرین, پسرور کے نالا ڈیک میں اونچے درجے کا سیلاب پانی میں مسلسل اضافے کے بعد دولت پور اور سائفن کے قریب نالا ڈیک کے کناروں سے سیلابی پانی باہر نکلنے کے باعث حالیہ کاشت کی گئی دھان اور چارہ جات کی فصلیں بری طرح متاثر ہوئیں. مہدی پور سمیت گاؤں گگے اور ریگڑیار کے دیہات میں پانی داخل ہونے کا خدشہ ہے. سیلابی پانی کے باعث مین ظفروال چوینڈا روڈ پر متاثر ہونے والے نالا ڈیک کے مزید 2 پل پانی میں بہہ گئے ہیں. سیلابی صورتحال پر مزید جانیں گے پسرور سے نمائندہ پی ٹی وی نیوز رانا کیسر حیات سے. جی بالکل, پسرور کے برساتی نالا ڈیک میں پانی کے بہاؤ میں اضافے کے بعد کنگرا, چہور, کالا پاڑ, صافہ اور قاضی پہاڑن کے قریب سیلابی صورتحال نظر آ رہی ہے, جس پر ضلع انتظامیہ کی جانب سے ریسکیو, پولیس, محکمہ نہار اور محکمہ صحت سمیت تمام اداروں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے اور مختلف مقامات پر فلڈ ریلیف کیمپ بھی قائم کر دیے گئے ہیں. نشیبی دیہات کے مکینوں کو نالا ڈیک میں کسی بھی ہنگامی صورتحال پیدا ہونے پر حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایات دی جا رہی ہیں. جبکہ چند دن پہلے نالا ڈیک سے بڑا سیلابی ریلا گزرنے کے باعث سائفن کے قریب اور سوکن ونڈ سے رتا جتھول جانے والی سڑک نالا ڈیک کے بند میں شگاف پڑنے سے کئی فٹ سیلابی پانی میں بہ گئی تھی اور کسانوں کی ہزاروں ایکڑ دھان اور چارہ جات کی فصلیں بھی متاثر ہو چکی ہیں. جبکہ مین ظفروال روڈ پر ہجلی کے قریب نالا ڈیک کا پل بھی بہ چکا ہے, جہاں پر ٹریفک کی آمد و رفت حال معطل ہو چکی ہے. سیلاب سے متاثرہ سڑکوں کی اور پل کی بحالی کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر رکن پنجاب اسمبلی پارلیمانی سیکٹری ایریگیشن رانا فیاض کی جانب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے بحالی کے کاموں کی ہدایت بھی دی گئی ہیں. جی بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. ناظرین, بھارتی آبی جارحیت کے باعث دریائے ستلج میں پانی کی سطح بلند ہو رہی ہے. ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر ضلعی انتظامیہ پاکپتن نے تمام متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ کر دیا ہے. تفصیل عباس علی عارفی کی اس رپورٹ میں. محکمہ انہار کے اب تک کے اعداد و شمار کے مطابق اس وقت دریائے ستلج میں پانی کی آمد 74,466 کیوسک ہے, جبکہ پانی کا اخراج 65,209 کیوسک ہے. 50,000 کیوسک پر نچلے درجے کا سیلاب ہوتا ہے. دریائے ستلج میں اس وقت ممکنہ سیلابی خطرات موجود ہیں. اس میں ہم خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کیونکہ انڈیا نے پونگ سے اور بھاکڑا ڈیم سے فلڈ کا پانی ریلیز کر دیا ہے, تو یہاں پہ پانی کی سطح اوپر جانے کا امکان ہے. اسی کے پیش نظر یہاں پہ ڈسٹرکٹ پاکپتن میں 12 فلڈ ریلیف کیمپس ہم نے اسٹیبلش کیے ہیں. 7 ریسکیو اینڈ ریلیف پوائنٹس ہم نے اسٹیبلش کیے جہاں پہ ہماری بوٹس جو ہیں وہ موجود ہیں لوگوں کو ایویکویٹ کرنے کے لیے. ہماری تمام شہریوں سے بھی گزارش ہے کہ ایک تو وہ جو کہ فلڈ پرون ایریاز ہیں وہاں سے اپنے جو ہے ساز و سامان تھوڑا سا خالی کر کے محفوظ مقامات پہ چلے جائیں. یہاں پر ہر قسم کی فیسلٹیز ہیں, لوگوں کو ہاؤس کرنے کے لیے بھی ہیں. اس کے علاوہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بھی یہاں پہ موجود ہے, ایگریکلچر ہے اور لائف سٹاک ہے. اس کے علاوہ ریسکیو 1122 اور ہم نے 24 گھنٹے 3 شفٹوں میں مختلف لوگوں کی ڈیوٹیز لگائی ہیں جو کہ یہاں پہ 24 گھنٹے موجود رہیں گے. ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر ضلع انتظامیہ کی جانب سے 18 کلومیٹر کی دریائی پٹی پر 12 فلڈ ریلیف کیمپ قائم کر دیے گئے ہیں. دریا کے قریب نشیبی بستیوں کے علاقہ مکینوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا سلسلہ جاری ہے. ضلع انتظامیہ کی جانب سے دریاؤں کے قریب جانے اور آمد و رفت سمیت کشتی رانی پر مکمل طور پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. عباس علی عارفی, پی ٹی وی نیوز, ڈسٹرکٹ پاکپتن. اور اب رخ کرتے ہیں شکر گڑھ کا, جہاں سیلابی صورتحال سے نپٹنے کے لیے انتظامیہ متحرک ہے. ندی نالوں میں طغیانی کی کیا صورتحال ہے اور تحصیل انتظامیہ نے کیا انتظامات کر رکھے ہیں, مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے شکر گڑھ سے محمد رمضان. حالیہ مونسون بارشوں کے باعث شکر گڑھ کے ندی نالوں میں طغیانی کی کیفیت ظاہر ہو رہی ہے. محکمہ ایریگیشن کے مطابق شکر گڑھ نالا اوج جلالہ کے مقام پر, درائے راوی, کوڑ نانا اور نالا بسنتر کے مقام پر پانی کا بہاؤ اپنے معمول کے مطابق ہے. نالا ڈے کنگرا کے مقام پر اس وقت تازہ ترین صورتحال کے مطابق پانی کا اخراج 20,515 کیوسک ہے. گزشتہ روز اس مقام پر بھارت کی طرف سے پانی چھوڑے جانے کے نتیجے میں نالا ڈیک میں گزشتہ روز درمیانی درجے کا سیلاب تھا. سیلابی صورتحال کے باعث یہاں پر پل بھی متاثر ہوا تھا.
डिप्टी कमिश्नर नारवाल और महकमा इरीगेशन के आला अफसरान ने मुतासरा इलाकों का दौरा भी किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महकमा इरीगेशन की, PDMA की, रेस्क्यू 1112 की सभी टीमें एक्टिवेट हो चुकी हैं। यहाँ पर जो है दरख्तों को डाला जा रहा है, सैंड बैग्स को डाला जा रहा है, इसके अलावा मिट्टी की भराई की जा रही है ताकि यहाँ पर जो होने वाला कटाव है उसको कम से कम किया जा सके। तहसील इंतजामिया ने हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। नाला डेक में पानी के बहाव की मुसलसल मॉनिटरिंग जारी है। मोहम्मद रमज़ान, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, शकरगढ़। नाज़रीन, मंडी बहाउद्दीन में आज मानसून बारिशों के 7वें स्पेल का आगाज़ हो गया है और सुबह से मंडी बहाउद्दीन में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश से हर तरफ जल थल हो गया और नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। महकमे मौसमियात ने 23 अगस्त तक मूसलाधार बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया है। आज दरिया जहलम में हेड रसूल के मकाम पर पानी की आमद 5200 क्यूसिक और अखराज 3600 क्यूसिक है। दरिया चनाब में हेड कादराबाद के मकाम पर पानी की आमद 82,888 क्यूसिक और अखराज 72,253 क्यूसिक है। मानसून बारिशों के 7वें स्पेल के 22 हेड रसूल के मकाम पर नीचे दर्जे जबकि कादराबाद के मकाम पर दरमियाने दर्जे के सैलाब का अंदेशा है। नाज़रीन, हुक्काम के मुताबिक तरबेला डैम से 3,75,000 से जायद 5 लाख क्यूसेक के दरमियान पानी छोड़े जाने की तवक्को की जा रही है, जिसकी वजह से अटक के मकाम पर दरियाई सिंध में निचले दर्जे का सैलाब रहेगा। अटक की तहसील हजरों के कई मकामात पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुतादिद इलाकों में पानी ज़री ज़मीनों में दाखिल हो गया। पानी से ज़री ज़मीनों में कटाव का अमल जारी है। ज़िले इंतज़ामिया अटक ने शहरियों को दरियाई सिंध के किनारों और पानी वाली जगहों से दूर रहने की हिदायत की है। पंजाब के कुदरती आफात से निपटने के इदारे PDMA ने आज से 23 अगस्त के दौरान सूबे भर में फ्लैश अर्बन और रिवर फ्लडिंग के खदशात से मुतालिक अलर्ट जारी किया है। इलामी के मुताबिक 17 से 23 अगस्त तक पंजाब भर में शदीद तूफ़ानी बारिशों और बाराई पंजाब में क्लाउड बर्स्टिंग का खदशा है। दरियाई चनाब और जहलों में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान है। PDMA ने दरियाई सिंध, सतलज, चनाब, जहलों में पानी के बहाव में इजाफे के खदशे से आगाह किया है। तर्जुमान PDMA के मुताबिक 17 से 19 अगस्त के दरमियान दरियाई चनाब और जहलों में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब की तवक्को है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर समेत पंजाब भर में मानसून का 7वां स्पेल आज से शुरू होने का इम्कान है, जिससे बालाई पंजाब के मुख्तलिफ अजला में तेज़ बारिशों के साथ क्लाउड बर्स्टिंग का भी खदशा है। मजीद जानते हैं मुदस्सिर खान से। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर समेत पंजाब भर में आज सुबह से ही मतला अबर आलूद है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे दर्जा हरारत में कमी आई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का 7वां स्पेल आज से शुरू होने का इम्कान है, जिससे सूबा भर में शदीद बारिशें होंगी, जबकि बलाई पंजाब जिसमें अटक, जेहलम, पिंडी और गलियात शामिल हैं, वहाँ पे शदीद बारिश के साथ साथ क्लाउड बर्स्टिंग का भी खदशा है, जिसके बायस शहरियों को हिदायत जारी की जा रही हैं कि वो शदीद बारिशों के सूरत में घरों से बाहर ना निकलें और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। PDMA की जानिब से अलर्ट जारी किया गया है कि बारिशों के बायस दरियाए सिंध, दरियाए रावी, दरियाए जेहलम और दरियाए सतलुज और चनाब में पानी के बहाव में गैर मामूली इजाफे का खदशा है, जबकि तौसा, गंडा सिंह और हेड सलमानकी के मुकाम पर निचले दर्जे के सैलाब का खदशा है। इसलिए शहरी दरियाओं और नदी नालों की तरफ जाने से परहेज़ करें। PDMA की तरफ से ज़िले इंतज़ामिया और पुलिस को हिदायत जारी की गई हैं कि वो नदी नालों और दरियाओं के अतराफ़ में पेट्रोलिंग को बढ़ाएं और दफ़ा 144 पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर नशेबी इलाकों में तमाम मुतल्लिका इदारे, रेस्क्यू, ज़िले इंतज़ामिया, वासा मौजूद हैं और मशीनरी भी वहाँ पर मौजूद है और तमाम अमले को हिदायत जारी की गई हैं कि बारिश की सूरत में फौरी निकासी आपको जो है वो यकीनी बनाया जाए। PDMA की जानिब से शहरियों को भी हिदायत जारी की जा रही हैं कि वो शदीद बारिशों की सूरत में जो है एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। फ्लश फ्लडिंग का खदशा मौजूद है, गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज लाहौर का दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 80% तक बढ़ जाने के बायस हबस और घुटन की शिद्दत में इजाफा हो गया है। जी मुदस्सिर खान, बहुत शुक्रिया। और अब रुख करेंगे शहर कायद का, जहां आज मौसम गर्म और मरतूब है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड है। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में रात में कहीं कहीं बूंदाबांदी की तवक्को है। हमारे साथ मौजूद हैं कराची से नुमाइंदा PTV न्यूज़ सुहेल जमाली। जी सुहेल, आगाह कीजिएगा।
कराची में गुज़िश्ता 2 रोज़ की तरह आज भी मौसम गर्म और मरतूब है। इस वक्त दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड है, ताहम हवा में नमी का तनासुब 56% से ज़ायद होने के बाइस गर्मी की शिद्दत 40 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस की जा रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 69 है और हद्द निगाह 4 किलोमीटर है। महकमा मौसमियात ने बताया है कि रात के औकात में कराची में कहीं कहीं बूंदाबांदी का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने यह भी बताया है कि सिंध के साहिली अजला ठट्टा बदीन सजावल, सहराई अजला उमरकोट और थरपारकर, वस्ती इलाकों टंडोला यार, मीरपुर खास सांगड़ और बालाई अजला सखर और लाड़काना में आज से 22 अगस्त के दौरान तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की और तेज़ बारिश हो सकती है। जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आपने मुलाहिजा की। अब आपको वापस ये चलेंगे मेन डेस्क की जानिब और दीगर खबरों में आपको आगाह करेंगे। यौम आज़ादी और मार्का हक में कामयाबी के जश्न के मौके पर तेहरान में पाकिस्तानी सिफारत खाने में तकरीब का इनेकाद किया गया। सफ़ीर मोहम्मद मुदस्सर टीपू ने कौमी तराने की धुन के साथ परचम कुशाई की। उन्होंने सदर ममलिकत वज़ीर आज़म के पैगाम पढ़कर सुनाए। तकरीब से खिताब में सफ़ीर ने मार्का हक की अजीम कामयाबी पर मुसल्लह अफ़वाज की पेशावराना सलाहियतों को खिराज तहसीन पेश किया। ईरान के सदर के हालिया दौरे पाकिस्तान का हवाला देते हुए सफ़ीर ने दो तरफ़ा तिजारती हजम को 10 अरब डॉलर तक ले जाने के अज़्म का खैर मकदम किया और कहा कि ईरान में मुकीम पाकिस्तानी अहदाफ के हुसूल में हम किरदार अदा कर सकते हैं। तकरीब के शुरका ने कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम से भरपूर इज़हार यकजहती किया। मुस्लिम लीग नून यूनान के ज़रिए एहतमाम जश्न आज़ादी के पुरमसरत मौके पर एथेंस के मकामी रेस्टोरेंट में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ओहदेदारान समेत कम्युनिटी अकाबरीन ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूनान के सदर चौधरी एजाज अहमद, सीनियर नायब सदर इसरार अहमद, चौधरी मेहंदी खान, चौधरी उमर गुज्जर और मलिक सरफराज अहमद ने खिताब करते हुए दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। मई के बाद दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान एक नए दौर में दाखिल हुआ है। आज दुनिया भर में पाकिस्तान को एक नई ताकत के रूप में देखा जा रहा है। तकरीब में जश्न आज़ादी का केक भी काटा गया। गवर्नमेंट इस्लामिया ग्रेजुएट कॉलेज सांगला हिल में शोबा उर्दू के ज़ेर तमाम 78वां यौम आज़ादी कौमी जोश जज्बे और मिली हम आहंगी से मनाया गया। तलबा तालिबात और असातिज़ा ने न सिर्फ मादरे वतन से अपनी बेमिसाल मोहब्बत का इजहार किया बल्कि पाक फौज की कामयाबियों पर फख्र और यकजहती का पैगाम भी दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं सांगला हिल से मोहम्मद अनवर अंसारी। पाकिस्तान की आज़ादी की रोशनी आज भी हर दिल को मनवर करती है। सांगला हिल के नौजवानों के जोश और जज्बे ने इस दिन की खुशियों को और भी रोशन कर दिया है। गवर्नमेंट इस्लामिया ग्रेजुएट कॉलेज के शोबा उर्दू में मुनाकदा इस तकरीब में सबज हलाली परचमों से सजे हाल में वतन से मोहब्बत की खुशबू फैली हुई थी। तलबा और तलबात के चेहरों पर फख्र और मोहब्बत के रंग नुमायां थे, जबकि ज़बानों पर मिली नगमों की मिठास गूंज रही थी। असातिज़ा इकराम और तलबा ने पाक फौज की बहादुरी पर शुक्रिया और मोहब्बत का पैगाम दिया और मादरे वतन के साथ अपनी अटल वाबस्तगी का अहद दोहराया। इंचार्ज शोबा उर्दू प्रोफेसर डॉक्टर नवाज कंवल ने नौजवानों की सलाहियतों को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान बेशुमार कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ है और नई नस्ल का फर्ज है कि मेहनत, इत्तेहाद और लगन से मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करे। उनका कहना था कि आज हम इस मकाम पर हैं कि कोई दुश्मन मैली नजर डालने की जुर्रत नहीं कर सकता, मगर ये कुव्वत सिर्फ तालीम और हुनर से ही बरकरार रखी जा सकती है। मोहम्मद अनवर अंसारी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, सांगला हिल। बहावल नगर में मार्का हक जश्न आज़ादी की तारीखी कामयाबी पर पाक अफवाज को खराज तहसीन पेश करने के लिए मुत्तहिदा कौम फातह पाकिस्तान के उन्वान से इस्तेहकाम पाकिस्तान ग्रैंड कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस कॉन्फ्रेंस का हवाला आपको बता रहे हैं राना फैसल रहमान। ऑपरेशन बनियानुल मरसूस मार्का हक की तारीखी कामयाबी में पूरी कौम के इत्तेहाद और यकजहती को उजागर करने के लिए पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम सिटी चौक बहावल नगर में मुत्तहिद कौम फातिहा पाकिस्तान के उन्वान से शानदार इस्तेहकाम पाकिस्तान ग्रैंड कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। पूरे पंजाब की आवाम ने निकल कर जिस अंदाज में ये 14 अगस्त मनाया है, इसकी मिसाल पाकिस्तान की 78 साल तारीख में नहीं मिलती। बहावल नगर के तमाम तबकात के लोगों ने, हत्ता के तमाम मसालक, हत्ता के तमाम मज़ाहब के लोगों ने मिलकर इस अज़म का ऐलान किया कि हम पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। जितना मुल्क के अंदर इत्तेहाद और यगानगत पैदा होगी, हमारी पाकिस्तानी फौज को सपोर्ट हासिल होगी, पाकिस्तान उतना ही मजबूत होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने ऑपरेशन बनियानुल मरसूस की तारीखी फतह को कौमी इत्तेहाद का अमली मजहर करार दिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान ग्रैंड कॉन्फ्रेंस के शुरा ने वतन अजीज की सालमियत, तरक्की और खुशहाली के लिए मुत्तहिद रहने के अज़म का इयादा किया।
राना फैसल रहमान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, बहावल नगर। वज़ीर ममलकत ख़जाना और रेलवे बिलाल अज़हर कियानी की दावत पर अमरीकी सफारत खाने की नाज़िम उल उमूर नेटली बेकर ने जेहलम में अब्दुल रज़ाक वेलफेयर ट्रस्ट डेफरेज स्कूल का दौरा किया। लाहौर कलंदर के CEO आतिफ राना, समीन राना और बैनुल अक़वामी क्रिकेटर हारिस रऊफ भी इस मौके पर मौजूद थे। तफसील बताएंगे नईम अख्तर भट्टी। अब्दुल रज़ाक वेलफेयर ट्रस्ट जेहलम में डेफ रीच स्कूल में एक मुनफरिद तकरीब का इनेकाद हुआ, जहां समाज से महरूम बच्चों ने अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर का हाथों की ज़बान में पुरतपाक खैर मकदम किया। नेटली बेकर ने भी इशारों की ज़बान में बच्चों का शुक्रिया अदा किया, जिस पर तकरीब का माहौल पुरजोश मुनाज़र पेश करता रहा। इस मौके पर लाहौर कलंदर के CEO आतिफ राना, समीर राना और क्रिकेटर हारिस रऊफ ने भी बच्चों से मुलाकात की, जबकि वालिदैन की बड़ी तादाद तकरीब में शरीक रही। वालिदैन ने स्कूल इंतजामिया और साजा का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने न सिर्फ तालीम बल्कि तरबियत और हुनरमंदी से भी बच्चों को आरास्ता किया। वज़ीर मुमलकत बिलाल अज़हर कियानी ने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, ये इदारा बरसों से समाज से महरूम बच्चों को मुफ्त इलाज, मेयारी तालीम और तरबियत फराहम कर रहा है। बोलने और सुनने से महरूम बच्चे भी मोहब्बत, तवज्जो और दुरुस्त रहनुमाई से रोशन मुस्तकबिल की तरफ बढ़ सकते हैं। नईम अख्तर भट्टी, PTV न्यूज़, जेहलम। खैबर पख्तूनख्वा की सेंट्रल जेल हरीपुर में मनशियात के आदी कैदियों के लिए कायम बहाली मरकज ने पहला संग मील अबूर कर लिया। 10 कैदी नशे की लानत से निजात पाकर सेहतमंद और बाइज्जत जिंदगी की जानिब लौट आए हैं। तफसील बताएंगे इस रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा की सेंट्रल जेल हरीपुर में मंशियात के आदी कैदियों के इलाज और बहाली के लिए कायम किए गए खुसूसी सेंटर से पहला बैच मुकम्मल सेहतयाब होकर जिंदगी की जानिब लौट आया। जेल इंतजामिया की कोशिशों और IG प्रिजन खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर कायम सेंटर में माहिर नफ्सियात की जेर निगरानी 10 कैदियों की बहाली का अमल मुकम्मल हुआ। इस सेंटर में कैदियों की जिस्मानी सेहत के साथ जहनी सुकून और रूहानी रहनुमाई का भी एहतमाम किया गया। नशे की लानत से छुटकारा पाने वाले कैदियों ने आइंदा सेहत जिंदगी गुजारने के अज़म का इजहार किया। शुरू में वी आर फेसिंग टू मच ट्रबल, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमारी एडिक्शन कम होती गई है। हमें बहुत अच्छी मेडिसिन प्रोवाइड करते रहे हमारे जो साइकेट्रिस्ट थे, और उसके बाद उन्होंने हमें फिजिकल एक्टिविटी में, जिनमें आउटडोर की गेम्स थी, बैडमिंटन था, क्रिकेट खेलते रहे हम, और इंडोर में हम कैरम बोर्ड और लूडो वगैरह इस तरह की एक सी गेम करते रहे। हमारे 3 मंथ्स पूरे हो गए हैं इस जगह पे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नशा छोड़ दिया है, मैं अपनी एक पुरानी रूटीन में आ गया हूँ। जेल हुकाम का कहना है कि इस प्रोग्राम का दायरा कार मजीद वसी किया जा रहा है ताकि नशे के आदी दीगर कैदी भी सेहतमंद और मुस्बत जिंदगी की तरफ लौट सकें। सबसे पहले तो इनके साथ जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो सेशंस लेते हैं इनके साथ, फिर जो हमारे साइकेट्रिस्ट होते हैं वो भी इनकी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए इन्हें मुख्तलिफ तरह की मेडिसिन वगैरह जो इन्हें ज़रूरत होती है वो इन्हें देते हैं। इसके अलावा इन्हें मुख्तलिफ हुनर जो हैं वो भी सिखाए जाते हैं। ये मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ भी सारा दिन करते हैं। इसके बाद हम दोबारा एक नया बैच जो है वो अभी शामिल करेंगे। तो ये लोग रिहाई के बाद जब बाहर जाएंगे तो ये माशरे में एक मुफीद शहरी जो है वो बनेंगे। सेंट्रल जेल हरीपुर का बहाली सेंटर नशे के आदी कैदियों के लिए उम्मीद की किरण साबित हुआ है। ऐसे मजीद इस्लाही मराकज का कयाम नशे की लानत के खात्मे में मौसर किरदार अदा कर सकता है। किंजा नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। फैसलाबाद प्रेस क्लब में सहाफ़ियों और उनके अहल खाना के लिए फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जहां उनका तिब्बी मुआयना और टेस्ट मुफ्त किए गए। तफसील बता रहे हैं हाफिज मोहम्मद अली आबिद। फैसलाबाद प्रेस क्लब के ज़ेर एहतमाम सहाफ़ियों और उनके अहल खाना के लिए 2 रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनाकाद किया गया। कैंप में अल्ट्रासाउंड, खून के टेस्ट, दिल के टेस्ट, शुगर और दीगर ज़रूरी टेस्ट बिल्कुल मुफ्त फराहम किए गए। फ्री मेडिकल कैंप में 700 से ज्यादा अफराद का मुआयना किया गया। ये फैसलाबाद प्रेस क्लब ने एक छत के नीचे तमाम टेस्ट इकट्ठे कर दिए, और ये बिला तखसीस ग्रुप या कोई जमात सहाफ़ियों की हट कर है कि कोई भी जो सहाफ़ी है वो आ जाए, अपने बाल बच्चे भी लाए, यहाँ पर अपना चेकअप करवा ले। तकरीबन 350 से ज़ायद सहाफ़ियों ने और उनके अहल खाना ने यहाँ पे टेस्ट करवाए। जर्नलिस्ट लोगों को, उनकी फैमिलियों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आई है डिजीज़ के बारे में, दिल के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में। जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं हम उनको बता रहे हैं कि उनको किस तरह की खुराक खानी चाहिए, कौन सी खुराक से परहेज करना चाहिए। एक जगह पर इतनी सारी मेडिकल की फैसिलिटीज़ जो है वो मिलना, ये बहुत अच्छा इकदाम है। खास तौर पर ग़िज़ाई मुशावरत का कैंप भी लगाया गया, जहाँ शुरका को सेहतमंद ग़िज़ा और दीगर तर्ज ज़िंदगी से मुताल्लिक़ रहनुमाई दी गई। फैसलाबाद प्रेस क्लब के ज़ेर एहतमाम सहाफ़ियों और उनके अहल खाना के लिए एक ही छत के नीचे तिब्बी सहूलियात की फराहमी काबिल तहसीन भी है और काबिल तकलीद भी। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, फैसलाबाद।
آزاد کشمیر میں حاملہ خواتین اور نوزائیدہ بچوں میں پولیو سمیت 12 بیماریوں سے بچاؤ کے لیے کام کرنے والے ادارے EPI اور یونیسیف کے تعاون سے ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد عوام الناس میں حفاظتی ٹیکہ جات کی اہمیت اور ویکسینیشن سے متعلق شعور اجاگر کرنا تھا۔ عادل احمد خان کی رپورٹ دیکھیے۔ مظفر آباد میں EPI اور یونیسیف کے اشتراک سے ہیلتھ بیٹ رپورٹرز کے ساتھ منعقدہ نشست میں بتایا گیا کہ آزاد کشمیر میں توسیعی پروگرام برائے حفاظتی ٹیکہ جات 1978 سے کام کر رہا ہے، جس کا مقصد حاملہ خواتین اور نوزائیدہ بچوں میں بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت میں اضافہ کرنا ہے۔ آج کا جو سیشن ہم نے رکھا تھا میڈیا پرسنز کے ساتھ، اس میں ہم نے ان کو رولز اینڈ رسپانسبلٹیز کے بارے میں بتایا ہے تاکہ کمیونٹی میں جو بھی خدشات ہیں، جو بھی فیئرز ہیں وہ ختم ہو، اور جو کمیونٹی ہے وہ وداؤٹ اینی فیئر وہ اپنے بچوں کو ویکسینیشن کروائیں۔ ہر بیماری سے بچاؤ کی جو ویکسین ہے اس میں اللہ کے فضل و کرم سے آزاد کشمیر 90% سے ابو ہے۔ ورکشاپ کے دوران بتایا گیا کہ آزاد کشمیر میں خواتین میں سروائیکل کینسر سے بچاؤ کے لیے 15 ستمبر سے 12 روزہ مہم شروع کی جائے گی، اور اس سلسلے میں 9 سے 14 سال کی عمر تک کی 3,24,000 بچیوں کو ویکسین لگائی جائے گی۔ ورکشاپ کے دوران اس بات پر زور دیا گیا کہ میڈیا حفاظتی ٹیکہ جات کی اہمیت اور ویکسینیشن سے متعلق شعور اجاگر کرنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ عادل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مظفر آباد۔ کھیلوں کی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں ہونے والی 3 ملکی T20 سیریز اور ایشیا کپ کے لیے پاکستانی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ قومی مینز ٹیم کے سلیکٹر عاقب جاوید اور ہیڈ کوچ مائک ہیسن نے لاہور میں 17 رکنی اسکواڈ کا اعلان کیا۔ سلمان علی آغا کو اسکواڈ کا کپتان برقرار رکھا گیا ہے۔ بابر اعظم اور محمد رضوان ٹیم میں جگہ نہ بنا سکے۔ اسکواڈ کے دیگر کھلاڑیوں میں فخر زمان، شاہین شاہ آفریدی، حارث رؤوف، سائم ایوب، خوش دل شاہ، حسین طلعت شامل ہیں۔ محمد نواز، محمد وسیم جونیئر، محمد حارث، ابرار احمد، فہیم اشرف، حسن علی، حسن نواز، صاحبزادہ فرحان، سلمان مرزا اور سفیان مقیم بھی اسکواڈ کا حصہ ہیں۔ پاکستان اور افغانستان اور UAE کی ٹرائی نیشن سیریز 29 اگست سے 7 ستمبر تک شارجہ میں ہوگی، جبکہ ایشیا کپ 9 سے 28 ستمبر تک ابوظہبی اور دبئی میں منعقد ہوگا۔ جرمنی نے ورلڈ گیمز کے کینو پولو مقابلوں میں طلائی تمغے جیت لیے۔ چین کے شہر چنگدو میں عالمی گیمز کے مینز اور ویمنز کینو پولو مقابلوں میں جرمنی نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ جرمنی کی خواتین ٹیم نے نیوزی لینڈ کو 4-0 سے شکست دے کر سونے کا تمغہ حاصل کیا۔ مردوں کے فائنل میں جرمن ٹیم نے اٹلی کو 3-1 سے ہرا کر فاتح کا اعزاز حاصل کیا۔ خواتین کے بیر بو گولڈ میڈل میچ میں فرانس کی الیشیا بومرٹ نے اٹلی کی سنزیا کو 43 کے مقابلے میں 50 پوائنٹ سے مات دے کر ٹاپ پوزیشن حاصل کی۔ مردوں کے بیر بو فائنل میں اٹلی کے سیمون باربیری نے آسٹریلیا کے سائمن جان فیئرویدر کو شوٹ آف میں ہرا کر طلائی تمغہ جیت لیا۔ فلائنگ ڈسک کے مکسڈ ایونٹ میں امریکہ نے کینیڈا کو سخت مقابلے کے بعد 13-12 سے شکست دے کر فتح حاصل کی۔ رولر سپورٹس مین سپیڈ سلالم فائنل میں چین کے یوانگ ہاؤ نے ہم وطن فویو کو 2-0 سے مات دے کر ورلڈ گیمز میں چین کا پہلا گولڈ میڈل جیتا۔ خواتین کے فائنل میں تائیوان کی لیو چاؤ ہسی نے چین کی USA کو شکست دے کر سونے کا تمغہ حاصل کیا۔ سنسناٹی اوپن ٹینس ٹورنامنٹ کا فائنل ورلڈ نمبر 1 اٹلی کی جینک سنر اور ورلڈ نمبر 2 اسپین کے کارلوس الکراز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ امریکی ریاست اوہایو میں جاری ATP ماسٹرز 1000 کے سیمی فائنل میں دفاعی چیمپئن اور برتھ ڈے بوائے سنر نے فرانسیسی کوالیفائر ٹیرس اتمانے کو شکست دے کر ان کے فائنل میں پہنچنے کا خواب چکنا چور کر دیا۔ سنر نے اتمانے کو 7-6 اور 6-2 سے مات دی۔ ایک اور سیمی فائنل میں کارلوس الکراز نے عالمی نمبر 3 جرمنی کے الیگزینڈر زویریو کو اسٹریٹ سیٹس میں 6-4 اور 6-3 سے ہرا دیا۔ عالمی نمبر 2 امریکہ کی کوکو گاف کو شکست، اٹلی کی جیسمن پاولینی نے ہرا کر سنسناٹی اوپن کے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ روس کی ویرونیکا کیترمتووا بھی لاسٹ 4 میں پہنچ گئیں۔ امریکہ میں جاری WTA ماسٹرز 1000 کی کوارٹر فائنل میں جیسمن پاولینی نے کوکو گاف کو ہرا کر ایونٹ سے چلتا کیا۔ پاولینی نے پہلا سیٹ 2-6 سے ہارنے کے بعد کم بیک کیا اور اگلے 2 سیٹ 6-4 اور 6-3 سے جیت کر سیمی فائنل کا ٹکٹ حاصل کیا۔ روس کی ویرونیکا کیترمتووا نے روسی نژاد فرانسیسی کھلاڑی وارورا کراجیکووا کو اسٹریٹ سیٹس میں ہرا کر پہلی بار سنسناٹی اوپن کے لاسٹ 4 میں جگہ بنائی۔ کیترمتووا نے 6-1 اور 6-2 سے کامیابی سمیٹی۔
जर्मनी में पहली जर्मन कश्ती रानी ग्रां प्री का आगाज हो गया है। रेस में फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, बर्तानिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड, ब्राजील, डेनमार्क और इटली से 12 टीमें शरीक हैं। पहले रोज ऑस्ट्रेलिया की बैंस फ्लाइंग रोज को बर्तरी हासिल रही। न्यूजीलैंड के मल्लाह 8 पॉइंट्स के फर्क से दूसरे नंबर पर रहे। 2 रोजा ग्रां प्री कुल 7 रेसेस पर मुश्तमिल है। पहले दिन 4 मुकाबले हुए। पहली रेस जर्मनी के नाम रही, दूसरी रेस बर्तानिया, रेस 3 डेनमार्क, जबकि चौथी रेस न्यूजीलैंड ने जीती। ओशन रेस यूरोप की दूसरी लीग का आज से आगाज हो रहा है। रेस का दूसरा मरहला पोर्टस्माउथ से स्पेन में कार्टाजेना तक 1400 नॉटिकल माइल्स पर मुश्तमिल है। पहला फ्रांस की बायोथ्रिम ने जीता, जबकि जर्मनी की टीम मेरिन्जिया दूसरे नंबर पर रही। रेस में 7 मिक्स जेंडर टीमें शरीक हैं जो 4500 नॉटिकल मील का सफर तय करके 21 सितंबर को मोंटेनिग्रो पहुंचेंगी। रेस के आगाज में टकराकर बाहर हो जाने वाली स्विट्जरलैंड की टीम हॉलिसम और इतालवी टीम अलेग्रांडे मापे भी इस मरहले में वापसी के लिए पुरुमीद है। अमेरिकन सॉकर लीग में लियोनेल मेसी की टीम इंटर मियामी ने लॉस एंजलिस गैलेक्सी को हरा दिया। फ्लोरिडा में खेले गए मैच में स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने न सिर्फ इंजरी से सेहतयाबी के बाद वापसी की, बल्कि अपनी टीम की जीत में भी अहम किरदार अदा किया। गुज़श्ता मैच में ऑरलैंडो सिटी के हाथों 4-1 से शिकस्त खाने के बाद इंटर मियामी ने लॉस एंजलिस को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। मेसी ने 1 गोल किया, जबकि 1 में मुआवनत फराहम की। मेजबान टीम की जानिब से लुइस सुआरेज और जॉर्डी अल्बाने ने भी मियामी के लिए गोल स्कोर किए। लियोनेल मेसी टांग की इंजरी की वजह से मियामी के लिए गुज़श्ता 3 मैच नहीं खेल सके। स्पेन के मार्क मार्केस ने ऑस्ट्रियन ग्रां प्री स्प्रिंट रेस जीतकर अपनी बालादस्ती बरकरार रखी। मार्क मार्केस ने चौथे नंबर से आगाज करते हुए अपने भाई और नजदीक तरीन हरीफ एलेक्स मार्केस को पीछे छोड़ा और रवां सीजन की 13वीं में से 12वीं स्प्रिंट रेस जीत ली। इस कामयाबी के साथ मार्क ने चैंपियनशिप में 123 पॉइंट्स की बर्तरी हासिल कर ली है। हस्पानिया ही के पैड्रो कोस्टा ने 3री पोजीशन हासिल की। मार्केस ने ये फतह नौजवान राइडर पाओ एल्सिना के नाम की, जिनका हाल ही में इंतकाल हो गया था। मोटो 2 में स्पेन के डैनियल हुलगाडो ने 3री पोजीशन हासिल की। मोटो 3 में अर्जेंटीना के वेलेंटिन पेरो ने अपने करियर की पहली पोल पोजीशन हासिल की। खेलों की खबरों से इतना ही। अब आपके लिए चलते हैं मेन डेस्क की तरफ। इसी के साथ खबरनामा पहुंचा अपने अख्ताम को। हमें दीजिए इजाजत। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए PTV न्यूज़। दुरुस्त हर वक्त।